Good morning, children. Abhinandan, Vande Mataram, to one and all present here. Teachers, thanks for respecting me, kindly be seated. It gives me immense pleasure to welcome you all on this special day of Independence Day. We are celebrating 79th Independence Day of our country, India. Children, मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम। मैं कुछ भी लिखना चाहूं तो ये इंकलाब लिखती है। Today, as we gather to celebrate this special day, my heart is filled with pride and joy. This day holds a special place in the heart of every Indian. India is not just a geography, not just history. It is not only a nation, a country, a mere piece of land. Children, it is something more. It is more than that. It is a metaphor, poetry, something visible but very tangible. It is vibrating with certain energy fields that no other country can claim. Independence Day needs a certain clear conception of what you are going to do after freedom. That is important. I know you have got freedom, but what you have to do after freedom, what are your rights after freedom? Freedom simply gives you the opportunity to do things, but you have no idea what you are going to do after independence or freedom. There is a great difference, children, between freedom and independence. Responsibility is always the first step towards freedom. Don't wait someone to bring you flowers. Children, plant your own garden. Plant your own tree. Decorate your own soul. May the flag of our Indian nation, may the flag of our nation always fly high, and may our hearts always be filled with pride. यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है इन जवानों ने, बच्चों ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। Our country is going towards progress in every field. Our country is writing a new chapter every day in different fields like military strength, education, technology, sports, and many more fields. It is writing a new dimension every day. Today, our military strength is equipped with the modern weapons which have the power of annihilating any enemy in the blink of an eye. स्वतंत्रता का अर्थ बच्चों ये होता है कि अपने अहित की भी स्वतंत्रता, हित की स्वतंत्रता ही नहीं, अहित की भी स्वतंत्रता। अगर कोई आपसे कहे आप सिर्फ वही करने में स्वतंत्र हैं जो आपके हित में है और वो करने में स्वतंत्र नहीं है जो आपके हित में नहीं है, तो आपकी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जो आपके हित में नहीं है उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, और जो आपके हित में है उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये मिल तो गया है, इसे संभालना बहुत मुश्किल काम है। इस देश को सामूहिक दायित्व की अवधारणा की जरूरत है। आज का जो परिवेश बना है, जो मैं बात कर रहे थे सबका, जो मूल्य होते जा रहे हैं, अब एक सामूहिक अवधारणा चाहिए, हर आदमी को जानना हो और हमारे अहितों की स्वतंत्रता और हमारे हितों की दोनों की स्वतंत्रता को ढूंढना हो। You are leader of the world. Some of you will become doctors, some engineers, some teachers, and whatnot. But always remember one thing, children, to never compromise with your work principles
and govern your life as an honest, responsible citizen of the country, it will then really be the dawn of your actual freedom. We have to fight against poverty, literacy, youth unemployment, and overpopulation. We have to stand against ignorance and spread education in every corner of our country. Respected fellows, there lies a huge responsibility upon our shoulders. We have to work day and night for the progress and welfare of our country. Soon the day is not far when we will be the world's most powerful country. सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में तो दमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। बच्चों, मेरे शब्द का एक एक मीनिंग कल इंकलाब लाएगा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं जो वाजपेयी जी ने कहा था। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता महापुरुष। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर सीखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे है, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल तटी है, नर्मदा इसकी गर्दनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखाड़ता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। मलिया नील चमर ढूंढता है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। बच्चों, हम वही हैं, हम वही हैं जिन्होंने एक बाण फेंक कर धरती से पानी निकाल दिया। भूलो मत, हम वही हैं जिसने एक उंगली पर इस दुनिया में गोल्डन को उठाया। हम वही लोग, हम वही हैं जो विष्णु जैसे दृढ़ विद्यावान महानुभाव की परंपरा में पैदा हुए। हम वही हैं जो आसमान में पानी को लेकर के पीछे जाते हैं। हम वो लोग हैं जब मैथमेटिक्स करते हैं तो दुनिया की सारी बहस लिखी होती है, जब आर्यभट्ट को रामानुजन सामने। हम वही लोग हैं जो चक्रव्यूह में नहीं जाना जानते नहीं, लौट के कैसे आएंगे, फिर भी पूरी दिलेरी से चक्रव्यूह के अंदर उतर जाते हैं। हम वही लोग, हमें पहचानो हम कौन लोग, इस देश का इतिहास उठा के रख दिया। हम वही लोग हैं जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगा करके आगे चले। हम वो लोग, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दौड़ों में प्रतिभा के साथ आगे आता। हम वो लोग, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हम वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन को बताया आतंकवादियों कि हम किस तरह से तुम्हारा सामना कर सकते जब मुसीबत पड़े। हम वो लोग हैं जो समुद्र में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर टेढ़ने लगते हैं। हम उस वंश परंपरा के लोग, हम साधारण लोग नहीं। And today on this special occasion, let me extend my gratitude to all the parents for joining us. Thank you sir। आप सभी अभिभावकों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने समय निकाला बच्चों के लिए। And in conclusion, I would like to echo the words of our former President, Dr. A.P. Abdul Kalam, who said, "Let us sacrifice today so that our children can have better tomorrow." On this Independence Day, let's pledge to our part in building a brighter, stronger, and more united India, trying to make unfavorable conditions favorable। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो दमक रखता हूँ। और इसी दो लाइन के साथ अपनी बात करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान। थैंक यू।